Hello students, today we start exercise 15.1. In last lecture we learned basic of what? Probability. Now over here the first question is complete the following statements. First one, probability of an event E and probability of the event not E is equals to. So that we have to write it as this form, P of E bar, that is equals to what? 1. This is the probability of E, and probability of not E is equals to, answer is what? 1. In blank we have to put what? 1. Second, the probability of an event that cannot happen is, the probability of an event that cannot happen, this is what? Probability क्या आएगा यहाँ पर? 0. Such an event is called what? Impossible event. This is called what? Impossible event, and its probability is what? 0. The probability of an event that is certain to happen. Certain to happen means that event is called what? Sure event or certain event, and the probability of that is what? 1. So over here such an event is called what? Certain event, or you can say sure event. Next, fourth one, the sum of the probabilities of all the elementary events of an experiment is what? Sum of the all the probabilities. Sum of the all probabilities is what? 1. Next one, the probability of an event is greater than or equal to, ऐसा हम लोगों ने लिखा था, 0 less than or equal to probability of E less than or equal to 1, means greater than or equal to 0 and less than or equal to what? 1. So over here we put 0 and less than or equal to what? 1. Right? So these are the fill in the blanks. Now second question. Now in second question, which of the following experiments have equally likely outcomes? Explain. Equally likely outcomes. Now equally likely outcomes means what? There have equal chance of occurrence. Suppose यहाँ पर एक कॉइन टॉस करते हैं, राइट? तो कॉइन टॉस करते हैं तो देयर इज ऑन टू पॉसिबिलिटीज, आइदर इट में बी हेड एंड इट में बी टेल. तो दोनों के पास जो है, दोनों आउटकम्स को, हेड को आने के भी एज वेल एज टेल, दोनों को आने के लिए इक्वल चांस ऑफ अकरेंस है, राइट? दोनों की, अगर ये हेड आएगा या तो टेल आएगा. तो दैट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट have equally likely outcomes. Now over here, first, a driver attempts to start a car. The car starts or does not starts. अब यहाँ पर a driver attempts to start a car. अब start car कर रहा है, बट वो start car हो सकती है, नहीं हो सकती है, वो नहीं हो सकती है, तो उसके पीछे काफी सारे reasons हो सकते हैं, काफी सारी possibilities हो सकती है car start करने के लिए, right? तो this experiment have not equally likely outcomes. Not equally likely outcomes. Next, second one, a player attempts to shoot a basketball. See or he shoots or miss the shot, right? तो यहां पर भी a player attempts to shoot a basketball. बास्केटबॉल शूट करेगा, राइट? तो वो शूट करने के लिए भी वहां पर काफी सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, राइट? शूट कर सकता है, नहीं शूट कर सकता, उसके पीछे भी काफी सारी कंस्ट्रेंट्स, काफी सारी रीजंस आ सकती है. तो दिस एक्सपेरिमेंट इज आल्सो नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स. इक्वली लाइकली आउटकम्स, सबका इक्वल चांस होना चाहिए, बट यहां पर इक्वल चांस होगा नहीं. नेक्स्ट वन, a trial is made to answer a true false question. The answer is right or wrong. अब यहां पर a trial is made to answer a true false question. Either that question is true or it may be false. तो over here दोनों है, equally chances है, either true आएगा या तो क्या आएगा? false आएगा. उसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन आएगा नहीं. तो this has what? equally likely outcomes. Next one,
अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल। तो बेबी इज बॉर्न तो दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो बॉय होती है या तो गर्ल होती है, उसके अलावा दूसरी कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है। दैट्स वाई दोनों के इक्वल चांसेस ऑफ अकरेंस है। दैट्स वाई दिस इज व्हाट इक्वली लाइकली आउटकम्स, राइट। तो इन दो थर्ड एंड फोर्थ में इक्वल लाइक था, बाकी में आता नहीं, राइट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बुक में से हम लोग करेंगे 1 बाय 1, राइट। आप लोग बुक में देखते जाना, फिर उस हिसाब से क्वेश्चंस में समझते जाना, राइट। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game, right। फुटबॉल गेम में कौन सी टीम को बॉल दिया जाएगा, इसके लिए कॉइन क्यों टॉस करते हैं, राइट। तो यहां पर व्हेन वी टॉस अ कॉइन, राइट, तो वहां पर इक्वल आउटकम्स आने के चांसेस रहते हैं। आइदर इट में बी हेड, इट में बी टेल, एंड वहां पर कोई भी पार्शियलिटी होगी नहीं, राइट। वी कांट प्रेडिक्ट इन एडवांस ना, कि कोई भी नहीं कह सकता कि हेड आएगा टेल आएगा, राइट। जो भी होगा वो अनप्रेडिक्टेबल होगा। इसीलिए कौन सी टीम को बॉल दिया जाएगा उसके लिए क्या करते हैं वो लोग, टॉस, कॉइन दी टॉस करते हैं, राइट। तो व्हेन टॉसिंग अ कॉइन we get equally likely outcomes, and the outcomes we cannot predict in advance, so they toss a coin. So this is our answer of third question. Now next fourth one, which of the following cannot be probability of an event, right। अब इसमें डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं। A is 2/3, B is -1.5, C is 15% and D is 0.7. अब we know that the probability of answer of probability is 0 less than or equal to probability of less than or equal to 1। अब 2/3 करोगे तो 0 point something आएगा, -1.5। अभी यहां पर देखो तो प्रोबेबिलिटी का आंसर कहां से कहां तक आता है, 0 या 0 से बड़ा या 1 या 1 से छोटा। यहां पर प्रोबेबिलिटी का आंसर -1.5 है, दैट इज नेगेटिव। तो यहां पर कौन सा आंसर होगा, प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी नेगेटिव आता नहीं है। तो यहां पर कौन सा आंसर प्रोबेबिलिटी का नहीं है, राइट। तो -1.5, तो दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट फिफ्थ वन, इफ P of probability of event E is equals to 0.05, what is the probability of not E? Probability of not E, अभी हम लोगों को पता है कि P of E प्लस P of not E, या तो E बार लिखो तो भी चलेगा, is equals to 1. We have to find P of not E, that is equals to 1 minus probability of E, that is 1 minus 0.05. तो आंसर क्या आएगा, 0.95। तो दिस इज द आंसर ऑफ P of not E। नेक्स्ट वी टेक क्वेश्चन नंबर 6। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। विच फ्लेवर कैंडीज, लेमन फ्लेवर कैंडीज। Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out, first one, an orange flavored candy? Which flavor candy? Orange flavor candy. अब बैग में कौन सी है, लेमन फ्लेवर कैंडी है। बैग में लेमन फ्लेवर कैंडी है और वो पिकअप करती है उसमें से, तो उसको कौन सी फ्लेवर की कैंडी मिल रही है, ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी। दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट। क्यों, क्योंकि बैग में लेमन फ्लेवर है तो ऑरेंज फ्लेवर मिलेगा नहीं, राइट। तो दिस इज impossible
event, therefore the probability of impossible event is what? 0. Now second one, a lemon flavored candy. तो डेफिनेटली लेमन फ्लेवर की कैंडी, क्योंकि बैग के अंदर लेमन फ्लेवर की कैंडी है तो वो उसमें से पिकअप करेगी तो लेमन फ्लेवर की कैंडी मिलेगी. तो सेकेंड वन में दिस इज सर्टेन इवेंट और यू कैन से व्हाट, श्योर इवेंट ऐसा भी कह सकते हैं. दैट्स व्हाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट और यू कैन से श्योर इवेंट इज इक्वल्स टू व्हाट, 1. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. Now seventh one is, that is, it is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. तो यहां पर इवेंट E ले लेते हैं कि the probability of 2 students not having, राइट, उसको इवेंट E ले लेते हैं. तो P of E is equals to 0.992. What is the probability that the 2 students having the same birthday? तो यहाँ पर नॉट हैविंग को E बार भी ले सकते हैं, तो हमें यहाँ पर P of E फाइंड करना है, ऐसा कह सकते हैं, राइट, कि E मीन इवेंट E मीन्स व्हाट, 2 students have same birthday, ऐसा भी लिख सकते हैं. E is equals to 2 students have same birthday, राइट. नहीं है तो उसके 0.992 है तो किसकी वो फाइंड करनी है. तो यहां पर वी नो दैट P of E प्लस P of E बार दैट इज इक्वल्स टू 1. P of E हमें फाइंड करना है, तो इज इक्वल्स टू 1 माइनस P of E बार. तो 1 माइनस 0.992, तो 1 माइनस 0.992, तो 0.008. तो दिस इज अवर आंसर ऑफ प्रोबेबिलिटी 2 स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे. नेक्स्ट वन, 8 वन. अ बैग कंटेन्स 3 रेड balls. A bag contains 3 red balls, 5 black balls. टोटल कितने हो गए? 8. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is, first one, red. हमें कौन सा बॉल मिलना चाहिए? रेड, राइट. Probability of getting red ball that is equals to, टोटल बॉल कितने हैं? वो 8, वो नीचे लिखना है, एंड जो हमारे फेवरेबल केसेस है वो ऊपर लिखना है. रेड बॉल कितने हैं? 3. तो प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आएगा? 3/8. नाउ सेकेंड वन में नॉट रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड बॉल. अभी रेड ना मिले, टोटल तो 8 ही है, तो डिनोमिनेटर में 8 फिक्स लिख ही देना है. अब रेड में मिलेगा, रेड नहीं चाहिए, तो रेड नहीं मिलेगा तो कौन सा मिलेगा रेड की जगह पर? तो जो हमारा ब्लैक है वो आएगा, क्योंकि रेड एंड ब्लैक 2 ही बॉल है उसके अंदर, तो रेड नहीं है तो ब्लैक आएगा. तो प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आएगा? 5/8. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दैट इज, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 5 रेड, 8 white and 4 green. Total that is 17. One marble is taken out of the box at random. One marble. What is the probability that the marble taken out will be, first one, red. Probability of getting what? Red मार्बल. चलो टोटल मार्बल्स कितने हैं? 70. उसमें से रेड मिले तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये रेड कितने हैं? टोटल 5. नाउ सेकेंड वन, व्हाइट. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट
मार्बल, टोटल 17 है, व्हाइट मार्बल्स कितने हैं 8, तो 8 डिवाइडेड बाय 17। नेक्स्ट थर्ड वन, नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं चाहिए, तो ग्रीन नहीं होगा तो कौन सा मिलेगा, आइदर इट में बी रेड और इट में बी व्हाइट, तो दोनों का टोटल कर देंगे, तो 5 + 8 दैट इज 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ not getting, probability of not getting green marble that is equals टोटल 17 है, इसके अलावा हमारे कितने हो गए टोटल 13, राइट। तो आंसर इज व्हाट 13 डिवाइडेड बाय 17। Next question number 10. A piggy bank contains 150 पैसे coins. 150 पैसे coins, right? फिर 50 rupees 1 coins. 50 rupees 1 coins. Next 20 rupees 2 coins. 20 rupees 2 coins. 10 rupees 5 coins. 10 rupees 5 coins. टोटल कॉइन्स कितने हो गए 0, 5 + 2 7 + 1 8, 180 coins, right? Now question, if it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that coin will be 50 paisa coin? Probability of getting 50 पैसा कॉइन दैट इज इक्वल टोटल कॉइन कितनी है 180, राइट। अब यहां पर 50 पैसे वाले कितने कॉइन है दैट इज 100, तो 0 0 कट, फिर और कट होगा 2 से, 5 2s and 9 2s, तो 5 divided by 9. Next second one, that is will not be rupees 5 coin. Probability of not getting rupees 5 coin that is equals to total 180 है। अब रुपीज 5 वाला कॉइन नहीं चाहिए, मीन्स ये कॉइन नहीं चाहिए, इसके अलावा कोई भी होगा तो चलेगा। तो टोटल कितना होगा 100, 150, 20 ऐड करेंगे तो 170, तो यहां पर 100 कट, तो आंसर 17/8। क्लियर? तो दिस 10 क्वेश्चंस टुडे वी सॉल्व, इन नेक्स्ट लेक्चर वी गो फर्दर, ओके।